Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So I would like to thank Abhishek for requesting this particular topic. So before we start this session, I would like to request you all that if you wish, I should make more videos on your syllabus. So do send me your syllabus on this email ID. My email ID is dramitlal87@gmail.com. So I will be definitely looking at your syllabus and will definitely work on all those topics which is not present on my channel. So today's topic is continuum behavior of leadership theory. So let us begin. So let's have a brief overview about this theory. The leadership theory was originally written in 1958 and the founders were Robert Tannenbaum and Warren H. Smith. They were the two people who basically founded this theory and later it was revised again in 1973. 1973 में भी इसको रिवाइज किया गया था. Their work suggests a continuum of possible leadership behavior available to a manager along which many leadership styles may be placed. थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स अगेन इस्तेमाल हुआ है, मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ. तो बेसिकली इन्होंने एक कॉन्टिनम बनाया था विच रेंजेस फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट और उन्होंने कहा था कि एट डिफरेंट पोजीशंस इन दिस कॉन्टिनम यू कैन प्लेस डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल. आप डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल को इस कॉन्टिनम में डिफरेंट जगह पर प्लेस कर सकते हो. That was the whole idea. The continuum presented a range of action related to the degree of authority used by the manager and the area of freedom available to the non-manager in arriving the decisions. तो basically इस मॉडल में दो लोगों का इस्तेमाल हो रहा है. One is the manager and another is the non-manager. और दो फैक्टर्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं. वन फैक्टर इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ अथॉरिटी कि मैनेजर के पास अथॉरिटी कितनी है एंड द अनदर फैक्टर इज द एरिया ऑफ फ्रीडम. जो नॉन मैनेजर्स हैं या जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके पास फ्रीडम कितना है. तो दो लोग इन्वॉल्व हैं दैट इज मैनेजर एंड नॉन मैनेजर्स और दो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं दैट इज डिग्री ऑफ अथॉरिटी एंड द एरिया ऑफ फ्रीडम. लेट्स टेक अप द मॉडल. मैं एक मॉडल को आपको समझा देता हूं थ्रू द पिक्चर. सो दिस इज द मॉडल. ऑन वन साइड यू कैन सी देयर इज अ बॉस सेंटर्ड लीडरशिप जो इस डायरेक्शन में जा रही है. ऑन द अदर साइड यू हैव सबऑर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप which is going in the right direction. And what we see is on this side, the upper side, ये वाला जो side है, on this side you see that there is a use of authority by the manager and this is the area of freedom. जैसा मैंने आपको बताया था there are two factors. दो factors के बीच में ये पूरा का पूरा theory है and this is your continuum. ये जो blue line आप देख रहे हैं this is your continuum. This was very much inspired by theory X and theory Y. So boss centered leadership was more about theory X whereas the subordinate centered leadership was dependent on theory Y. अगर आपको theory X और theory Y में कोई भी confusion है तो मैंने already उसका एक वीडियो पोस्ट किया है. I will definitely add the link in the description below. Based on this model, जो मॉडल आपके सामने ऊपर दिख रहा है इसके बेसिस पे उन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 तो ये 7 लीडरशिप स्टाइल एक्सप्लेन किए कि there are 7 possible continuums. There could be 7 continuums which can be written on this particular line. That was the whole idea of this particular model. So let me explain you each of these. ये 7 के 7 leadership style क्या थे हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं. So in the first continuum we see that the manager makes the decision and just announces it. यहाँ पर क्या होता है कि जो मैनेजर है वो completely autocratic होता है and he takes the decision on the behalf of subordinates. वो अकेले ही सारा डिसीजन ले लेता है एंड इट्स लाइक एन ऑर्डर. वो एक ऑर्डर की तरह होता है वेयर एवरीवन हैज टू फॉलो. जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उन सबको उसको फॉलो करना ही करना है. देयर इज नो अदर चॉइस. थर्ड इज देयर इज नो से ऑफ द सबऑर्डिनेट इन द डिसीजन मेकिंग. जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे दैट विल बी कंप्लीटली इन द हैंड ऑफ लीडर एंड नो अदर सबऑर्डिनेट विल बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस decision making. So this was the first leadership style. So in the second leadership style, manager sells the decision. Manager यहाँ पे decision को sell करता है. अब sell करने का यहाँ पर क्या मतलब है? पिछले वाले में वो tell करता था, सिर्फ बताता था. यहाँ पर वो सेल करता है. सेल में क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं. मैनेजर ट्राइज टू परसुएट द सबऑर्डिनेट. बेसिकली वो उनको सिर्फ ऑर्डर नहीं दे देता ऑल्दो वो डिसीजन ले चुका है. द मैनेजर हैज ऑलरेडी टेकन द डिसीजन. नाउ व्हाट ही विल डू, ही विल ट्राई टू परसुएट सबऑर्डिनेट्स. कैसे वो परसुएट करेगा? दैट ही और शी एक्सप्लेन्स व्हाट इज इन इट फॉर यू. तो बेसिकली वो क्या एक्सप्लेन कर देगा कि इस डिसीजन में तुम्हारा क्या फायदा है.
वो परसुएट कर देगा आपको समझा देगा कि इस डिसीजन, मैंने जो डिसीजन लिया है वो तुम्हारे ही अकॉर्डिंगली सोच कर लिया है. सो इन दिस वे द सबऑर्डिनेट विल फील कि ओके ये तो मेरे हक की बात हो रही है, मेरे फायदे की बात हो रही है, तो वो आपका साथ दे देगा. बट अगर आप देखा जाए तो सबऑर्डिनेट ने कोई डिसीजन लिया नहीं है. इट इज द मैनेजर हु हैज टेकन ऑल द डिसीजन. तो सबऑर्डिनेट हैज नो से इन द डिसीजन मेकिंग. सबऑर्डिनेट के पास फिर से कोई से नहीं है इन सेकेंड लीडरशिप स्टाइल ऑल्सो. Let's talk about the third decision making style. The manager presents the idea and invites suggestions. तो अब यहां पर क्या होता है कि मैनेजर कोई डिसीजन को आइडिया, आप मैनेजर कोई भी डिसीजन अगर उसको लेना है तो वो जो भी डिसीजन वो लेने वाला है उस आइडिया को वो प्रेजेंट करता है. एंड देन ही आस्क्स हिज सबऑर्डिनेट, वो अपने सबऑर्डिनेट को कहता है कि तुम बताओ कि क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए. ऑल्दो द सजेशन आर जस्ट फॉर द नेम सेक. लेकिन अगेन वही बात है कि इवन दो जो सजेशंस आपसे मांगे जाते हैं बट मैनेजर उन सजेशंस को बस नेम सेक की तरह लेता है. फाइनली ही टेक द डिसीजन. उसमें से कोई अगर थोड़ा बहुत आपको उसको लगता है कि कोई माइनर चेंजेस करने चाहिए तो माइनर चेंजेस के बारे में वो सोचता है. बट अदरवाइज द मेजर डिसीजन इज अगेन टेकन बाय द लीडर ओनली. एंड दैट मीन्स द सबऑर्डिनेट हैज लिटिल इन्फ्लुएंस, थोड़ा इन्फ्लुएंस है ऑन द डिसीजन मेकिंग. तो डिसीजन मेकिंग पे थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलता है सबऑर्डिनेट का. दैट मीन्स अगर 100 आइडियाज उसको मिल रहे हैं तो उसमें से शायद वो 1 या 2 आइडियाज को अपने वाले डिसीजन के हिसाब से इनकॉर्पोरेट कर सकता है. बट मोस्ट ऑफ द टाइम द सबऑर्डिनेट विल हैव लीस्ट इन्फ्लुएंस इन द डिसीजन मेकिंग अगेन. So in the fourth decision making, what happens is it is almost like a 50-50% now. So this is 50%, the authority is 50%, and the freedom is also 50% now. That means the manager presents a tentative decision and asks his subordinates to contribute. अब यहाँ पर क्या होता है, मैनेजर कोई डिसीजन अभी तक लिया नहीं है उसने, बट वो अपने टेंटेटिव डिसीजंस या अल्टरनेटिव्स जो उसके पास अवेलेबल हैं वो उसको एक्सप्लेन करता है टू द सबऑर्डिनेट्स. एंड देन ही आस्क्स द सबऑर्डिनेट टू कंट्रीब्यूट विद देयर सजेशंस. वो कंट्रीब्यूट करने को कहता है. द सबऑर्डिनेट हैज लिटिल मोर इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग. अब चूंकि ये 50-50% पे पहुंच गया है तो सबऑर्डिनेट भी काफी उनको लगता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिपेंडेंस ऑफ मैनेजर ऑन अस एंड दैट इज व्हाई दे आल्सो पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग एंड दे गिव गुड आइडियाज एंड दे एक्सपेक्ट द मैनेजर्स टू इनकॉर्पोरेट देयर आइडियाज इनटू द डिसीजन. So that is like the fourth leadership style. It's like 50-50%. Now let's move to the fifth one. Manager explains the problem एंड आस्क सबऑर्डिनेट फॉर द सजेशन. अब यहां पर कोई टेंटेटिव डिसीजन भी अभी तक नहीं हुआ है. मैनेजर को बस प्रॉब्लम ही पता लगी और वो प्रॉब्लम को लेकर सबऑर्डिनेट्स के पास पहुंच गया. क्योंकि अगर आप इस पर्टिकुलर ग्राफ को देखें यहाँ पे 70-30 हो गया है. 70% फ्रीडम मिल चुका है और 30% ही अथॉरिटी नजर आ रही है. सो दैट मीन्स दैट इट इज मोर नाउ द सबऑर्डिनेट्स आर मोर डोमिनेंट एज कंपेयर टू द लीडर. So what will happen? The manager ऐसा क्यों करता है? Because the manager trust the knowledge and experience of the employees. Manager completely trust करता है कि जो employees उसके साथ काम कर रहे हैं, जो non managers काम कर रहे हैं, वो completely उनके पास knowledge है, उनके पास experience है to handle this particular situation. The manager takes the suggestion and based on those suggestions, finally the decisions are made. Let's move to the sixth one. The manager delegates the decision. अब sixth वाले में क्या होता है? अगर आप देखें यहाँ पर almost like 10-20% dominance हो गया है of the authority and there are 80% completely dominance of the subordinate. That means यहाँ पर manager कोई भी decision नहीं लेता. Manager completely delegate कर देता है to the group members that you are the one who are going to take the decisions. द मैनेजर डिफाइंस द लिमिट. लेकिन एक चीज जो यहां पर इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 20% अथॉरिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है तो वहां पर क्या होता है कि वो एक लिमिट सेट कर देता है. ही सेट्स अ लिमिट इन फ्रंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स कि इतने लिमिट के अंदर ही आप डिसीजन को ले सकते हो, इससे बाहर आप जाकर कोई डिसीजन नहीं ले सकते. तो लिमिट्स जो है वो मैनेजर सेट डाउन करता है. एंड द डिसीजन इज लाइक अ जॉइंट एफर्ट. और डिसीजन जो होता है वो फाइनली एक जॉइंट एफर्ट होता है बाय द मैनेजर एंड द सबऑर्डिनेट्स. बट लिमिट्स सेट होती हैं. And the final leadership style, जो last one है, which is like a perfect, the other continuum पे आप पहुंच चुके हैं. We have almost reached to the last side of the graph. And what happens in this leadership style, the group makes decision on the behalf of leader. Leader का कोई रोल नहीं है, leader का रोल 0 हो चुका है. Now the group is dominating और group ही सारे decisions को ले रहा है. The leader authority is almost nil. लीडर की अथॉरिटी ऑलमोस्ट नील हो चुकी है.
एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द ग्रुप फ्रीडम। और ये एक आप ऐसे लेवल पे पहुंच चुके हैं, जो ग्रुप काम कर रहा है आपके साथ, जो सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, उनके पास कंप्लीट फ्रीडम है कि वो सारे डिसीजन खुद से लेंगे। इट इज अ कंप्लीट लेसेस फेयर स्टाइल। तो दीज आर द 7 लीडरशिप स्टाइल्स ऑन द बेस्ड ऑन द कॉन्टिनम। तो कॉन्टिनम हमें पता था, उसमें 7 लीडरशिप स्टाइल्स प्रपोज किए गए। बट अब इन 7 में से कौन सा लीडरशिप स्टाइल हमें चूज करना चाहिए, वो कैसे डिसाइड होगा? अकॉर्डिंग टू टेनेनबॉम एंड स्किडमेट, वन हैज द चॉइस टू मेक द लीडरशिप स्टाइल। ऑब्वियसली लीडरशिप स्टाइल उसको कैसा चूज करना है वो उसके पास चॉइस है, बट दिस चॉइस डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स। तो व्हाट आर दीज 3 फैक्टर्स? फर्स्ट, फोर्सेस इन द मैनेजर, सेकेंड, फोर्सेस इन द सबॉर्डिनेट, एंड थर्ड, फोर्सेस इन द सिचुएशन। फोर्सेस क्या है यहां पर मैं समझा देता हूं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मैनेजर के कंट्रोल में है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो सबॉर्डिनेट के कंट्रोल में है, और कुछ ऐसी चीजें जो सिचुएशन के कंट्रोल में है। तो बेस्ड ऑन ऑल दीज 3 थिंग्स, इन तीनों के हिसाब से ही आप उन 7 में से कोई एक लीडरशिप स्टाइल को चूज करेंगे, या फिर आप उनमें स्विच भी कर सकते हैं। क्योंकि एक एजम्पशन इसका यह भी था कि आप 7 में आप स्विच भी कर सकते हो। आप 1 से शुरू करके 2 में जा सकते हो, 2 से 4 में जा सकते हो, 4 से 7 में जा सकते हो। तो टाइम टू टाइम एंड डिसीजन टू डिसीजन आप मूव भी कर सकते हो। सो लेट्स टॉक अबाउट द फोर्सेस ऑफ मैनेजर। अब मैनेजर के फोर्सेस क्या क्या हैं? फर्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू सिस्टम ऑफ मैनेजर? मैनेजर का खुद का वैल्यू सिस्टम कैसा है? व्हाट काइंड ऑफ लीडरशिप बिहेवियर, लीडरशिप स्टाइल इन विच ही बिलीव्स इन, और वो किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में पहले काम कर चुका है, या वो कंप्लीटली उसका जो राइट फ्रॉम हिज बिगिनिंग वो किस तरह के स्कूलिंग में रहा, किस तरह के पेरेंट्स में रहा, किस तरह के इन्वायरमेंट में अब तक काम कर रहा है। ये सारी चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं, बिकॉज इसी के बेस पे लीडर अपना लीडरशिप स्टाइल को चूज करता है। देन द सेकेंड वन इज द कॉन्फिडेंस इन सबॉर्डिनेट्स, कि लीडर को सबॉर्डिनेट्स में कितना कॉन्फिडेंस है। ऑब्वियसली अगर आपका कॉन्फिडेंस सबॉर्डिनेट्स में ज्यादा होगा तो आप उनको डेलीगेट करोगे एंड यू विल एक्सपेक्ट देम टू टेक डिसीजन ऑन योर बिहाफ। बट इफ यू बिलीव दैट योर सबॉर्डिनेट्स आर नॉट कैपेबल इनफ, दे डोंट हैव नॉलेज, दे डोंट हैव एक्सपीरियंस, तो ऑब्वियसली आपको खुद ही उनका डिसीजन लेना पड़ेगा और अथॉरिटी वाला कॉन्टिनम बड़ा हो जाएगा। थर्ड इज द लीडरशिप इंक्लिनेशन, कि लीडर का इंक्लिनेशन कैसा है। उसका इंक्लिनेशन फ्रीडम की तरफ है या उसका जो इंक्लिनेशन है वो पावर की तरफ है। क्योंकि अगर उसका इंक्लिनेशन पावर की तरफ है तो अथॉरिटी वाले साइड पर वो हमेशा हाई रहेगा, और अगर वो फ्रीडम में बिलीव करता है, अगर वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में बिलीव करता है, तो वो हमेशा ग्रुप मेंबर्स को इक्वल वैल्यू देगा और उनका डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कराने के बारे में सोचेगा। द फोर्थ वन इज फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी इन द अनसर्टेन सिचुएशन। अब लीडर कितना सिक्योर फील कर रहा है। अगर तो लीडर सिक्योर फील कर रहा है तो ग्रुप को चांस देगा, ग्रुप को मौका देगा, क्योंकि उसको पता है ही हैज नो डेंजर अबाउट हिज ओन पोजीशन, उसके पोजीशन को कोई खतरा नहीं है। ऑन द अदर साइड ऑफ द सिचुएशन इज वेरी अनसर्टेन एंड लीडर भी घबराया हुआ है। लीडर ऑल्सो बिलीव्स दैट देयर इज अ फियर and there is suspicion, तो what will happen? That leader will not give freedom to the people. He will take every decision on its own end. सारे decision को खुद लेगा. So these are like certain forces of manager which जो manager के end पे है. Let's talk about the forces of subordinates now. अब सबॉर्डिनेट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट, सबॉर्डिनेट कितना इंटरेस्ट ले रहा है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं क्या वहां सभी लोग इंटरेस्ट लेते हैं? दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। तो अगर आप फ्रीडम दे देते हैं उन लोगों को और वो इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर डिसीजन मेकिंग, तो फाइनली आप उनको फ्रीडम देके करोगे क्या? इट विल नॉट बी रियली हेल्पफुल। सेकेंड, रेडीनेस कितना है? आर दे रेडी फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज? दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिसीजन मेकिंग का मतलब है कंसिक्वेंसेस, और कंसिक्वेंसेस का मतलब है कि आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो जो आपके लीडर्स हैं, जो आपका सबॉर्डिनेट है, क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए तैयार है? क्या उसकी रेडीनेस है? थर्ड पॉइंट इज एबिलिटी टू हैंडल एम्बिग्यूटी। अब ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग जब होती है ना, तो वहां पर अल्टरनेटिव्स बहुत होते हैं, 1 2 3, तो वहां पर एम्बिग्यूटी हो जाती है कि 1 को चूज करें, कि 2 को चूज करें, कि 3 को चूज करें। तो क्या एम्बिग्यूटी को हैंडल करने के लिए, अल्टरनेटिव्स को हैंडल करने के लिए क्या एक्सपीरियंस है? क्या एम्प्लॉय सबॉर्डिनेट्स के पास वो प्रेशर हैंडल करने की कैपेबिलिटीज है? दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। फोर्थ वन इज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपका स्टाफ नॉलेजेबल है, एक्सपीरियंस्ड है, पहले भी कई डिसीजंस ले चुका है, तो लीडर रिलैक्स कर सकता है और उनको डिसीजन लेने का एक चांस दे सकता है। नेक्स्ट इज नीड ऑफ इंडिपेंडेंस। नीड ऑफ इंडिपेंडेंस मीन्स कि आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो कितना इंडिपेंडेंस चाहते हैं। क्या दे वांट 50% ऑफ इंडिपेंडेंस, दे वांट 90% ऑफ इंडिपेंडेंस, और दे जस्ट वांट 10% ऑफ इंडिपेंडेंस? वो कहते हैं जो लीडर कर रहा है वही सही है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सबॉर्डिनेट्स इंटरेस्ट, देयर रेडीनेस, देयर एबिलिटीज, देयर कैपेबिलिटीज इन फाइनल स्टाइल ऑफ लीडरशिप।
लास्ट इज द सिचुएशन। अब सिचुएशन में क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट इज द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन का स्टाइल क्या है, क्या वहां पर अथॉरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वहां फ्रीडम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन में पहले से फ्रीडम का कल्चर है तो आप एकदम से अथॉरिटी नहीं कर सकते, और अगर वहां अथॉरिटी का कल्चर है तो आप एकदम से फ्रीडम नहीं कर सकते। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन का भी लीडरशिप स्टाइल देखना पड़ेगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। सेकेंड इज द ग्रुप इफेक्टिवनेस, कि ओवरऑल ग्रुप का इफेक्टिवनेस कितना अच्छा है। द ग्रुप इफेक्टिवनेस इज, अब अगेन सिचुएशन पे बेस्ड है, क्योंकि हर समय आप डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप मेंबर्स के साथ काम कर रहे हो। एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लोग काम कर रहे हैं, तो हर डिपार्टमेंट के लोगों का इफेक्टिवनेस सेम नहीं हो सकता। तो सिचुएशन को देखना पड़ेगा कि जिस ग्रुप के साथ आप काम कर रहे हो उनकी इफेक्टिवनेस कितनी है। अगर उनकी इफेक्टिवनेस हाई है तो उनको फ्रीडम दो, और अगर उनकी इफेक्टिवनेस लो है तो आप अथॉरिटी रखो। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। थर्ड इज द नेचर ऑफ प्रॉब्लम। अब जो प्रॉब्लम आपके सामने है वो प्रॉब्लम कैसा है, क्या वो रूटीन प्रॉब्लम है जो हमेशा आता रहता है। अगर तो वो रूटीन प्रॉब्लम है तो आप फ्रीडम दे सकते हो, और अगर वो कोई वंस इन अ टाइम कोई क्राइसिस है, कोई एकदम ऐसी बड़ी प्रॉब्लम है जिससे आपका ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टेड हो रहा है, दैट मीन्स यू कैन नॉट गिव कंप्लीट फ्रीडम टू द पीपल, मे डू नॉट टेक एनी अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर फाइनल डिसीजन। सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द टाइम प्रेशर। आपके पास टाइम कितना है। अगर तो टाइम है तो लोगों से सजेशंस लो, उनसे इनवाइट करो सजेशंस, उनके सजेशंस को इनकॉर्पोरेट करो, फाइनल डिसीजन लो, फिर फाइनल डिसीजन को भी दोबारा चेक कराओ। ये सारी चीजें की जा सकती हैं, बट टाइम तो होना चाहिए ना। इफ यू डोंट हैव द टाइम, अगर टाइम ही नहीं है तो फाइनली यू हैव टू टेक द डिसीजन एट वॉट एवर रिसोर्सेज अवेलेबल विथ यू। जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है आप उनका डिसीजन ले सकते। नाउ एवरी मॉडल इन मैनेजमेंट इज ऑब्वियसली फिल्ड विद लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। तो यहाँ पर भी कुछ क्रिटिसिज्म है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। द फर्स्ट क्रिटिसिज्म, वन ऑफ द assumptions ऑफ द मॉडल दैट लीडर कैन स्विच बिटवीन ऑल द लीडरशिप स्टाइल, विच इज कंप्लीटली अनरियलिस्टिक। लीडर का लीडरशिप स्टाइल जनरली फ्रीज्ड होता है, वो जल्दी चेंज नहीं कर पाते, वो एक तरह की पर्सनालिटी ट्रेट जैसा हो जाता है, विच आर कंप्लीटली इनकॉर्पोरेटेड। कुछ मेजर प्रॉब्लम्स आ जाए या कुछ मेजर ऐसा चेंज आ जाए तभी किसी का कोई हृदय परिवर्तन होता है। अदरवाइज सभी लीडर जो अथॉरिटी पे चल रहे हैं वो अथॉरिटी पे चलते हैं, जो फ्रीडम पे चल रहे हैं वो फ्रीडम पे चलते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप स्विच करते रहो, दैट्स नॉट पॉसिबल। सेकेंड इज कल्चरल डिफरेंसेज अमंग एम्प्लॉइज। ऑब्वियसली जब एम्प्लॉइज को आप पावर देते हैं और उनके हाथ में डिसीजन छोड़ते हैं तो वहां पर भी अलग अलग तरह के एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड, तो उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू मस्ट टेक ऑल दीज थिंग्स इनटू कंसिडरेशन बिफोर गिविंग फ्रीडम टू द पीपल. So this was all about the continuum theory of leadership. I hope you understand. Thanks for watching. If you really like my videos, do subscribe to my channel. And if you wish that I will be making more videos, do post in the comment section, or you can write an email on dramitlal87. We'll be meeting in the next session.